آپ نے مجھے میسج کیا تھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کے تعلق سے آپ نے سوال کیا تھا، جی ہے نا؟ تو میں جواب دینے کے لیے کال کیا ہوں۔ تو آپ کا سوال کیا ہے ذرا بتائیں گے آپ کال میں اپنی بات میں؟ ہیلو ہیلو چلا گیا چلا گیا پھر لگاؤ پھر سے لگاؤ فون۔ ڈرتا ہے کہیں کال ریکارڈ ہو جائے، پھر بے عزتی نہ ہو۔ بے عزتی کی کیا بات ہے؟ تم کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تم کیا علامہ فہامہ تھوڑی ہو؟ سیکھ لینا، علماء سے پوچھ کے سیکھ لینا۔ اگر تمہارے ذریعے سے دوسرے کو بھی ایک حق بات سننے کو موقع ملے تو دوسرے بھی سنیں گے، تمہاری بات سن کر وہ بھی سدھریں گے، صحیح تعلیمات سیکھیں گے۔ ہلو کال کاٹ کے کیوں بھاگ رہے ہیں جناب؟ نہیں کال نہیں کاٹا، میرا موبائل جو ہے نا وہ چل نہیں رہا ہے، وہ آواز کٹ گئی، پھر کٹ ہو گیا، پھر واپس لگایا میں نے۔ اچھا چلیے، آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ ذرا جی سوال جی بتائیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ نہیں، آپ ہی خود بتا رہے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان کے جنازے میں کتنے صحابی حاضر تھے؟ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ نے مجھے وائس میسج اس میں ٹیکسٹ میسج میں، بھیجا۔ ہاں واٹس ایپ میں۔ آپ کا واٹس ایپ پہ جو میسج تھا وہ میسج میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے جی جی سلام کیا پہلے، السلام جی علیکم اہل علم، جی معلوم ہوتے ہو مسئلہ، ہاں جی ماشاء اللہ یوٹیوب سے نمبر ملا، کچھ جی اہم علمی سوال ہے جی جی اور ہاں وہی تحقیقی جواب طلب ہے، حضور جی جواب عنایت فرمائے۔ جی جب ایک معمولی پٹھان مولوی اختر رضا کا جی وصال ہوا تو ان کے نماز جنازے میں لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کی بھیڑ تھی، مگر جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کتنے صحابی نبی کے جنازے میں حاضر تدفین کے وقت حاضر تھے؟ حاضر تھے۔ جواب دو اگر جی اہل علم ہو۔ جی یہ آپ کا سوال تھا۔ جی تو آپ جنازے کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نہیں جنازہ ان کا ہوتا تو نہیں ہے، مگر تدفین تو ہوتی ہے نا، جنازہ تو نہیں ہوتا، ہم کو پتا ہے۔ نہیں، جنازے کی نماز میں تدفین میں ہاں جی تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے، تو جی تدفین میں صحابہ اکرام شرکت کیے، صحابہ اکرام تدفین میں بھی جی شرکت کیے، اور جی ہمارے نبی کا جنازہ نہیں ہوا، جنازے کی نہیں، نماز۔ وہ تو بے شک نہیں، نماز ہوتی نہیں ہے، بے شک وہ نہیں ہوتا ہے، جنازہ نبی کا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ تدفین ہوتی ہے، ہاں تو تدفین تو ہوتی ہے۔ جی جی، تو جی جی آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ نہیں اعتراض نہیں ہے کہ وہ ابھی کچھ بولتے ہیں کہ بھائی جنازے میں 1.25 لاکھ صحابی حاضر نہیں تھے۔ تو 1.25 لاکھ سنو، جی 1.25 لاکھ صحابی پورے عرب میں الگ الگ حصے میں تھے، اور یمن میں تھے، جی اور کچھ عراق کے تھے، مصر ہاں کے جی تھے، ملک شام کے جی تھے، تقریباً 2,000 3,000 کلومیٹر دور کے تھے۔ اس جی زمانے میں اونٹ کی سواری، جو اپنے اپنے وطن میں تھے، حجت الوداع میں اکٹھا ہوئے تھے 1.25 لاکھ صحابی۔ ہاں، جی تو جی اکٹھا ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے گاؤں چلے گئے، اور جی جو مدینہ شریف میں تھے، مدینہ شریف کے آس پاس کے صحابہ اکرام تھے، وہ چند ہزار جی کے تھے۔ ہاں، جی چند ہزار کے جی تھے، اور اگر 1.25 لاکھ جی صحابی کو آنے پر آپ مطالبہ کر رہے، 1.25 لاکھ صحابہ کو آنا چاہیے تھا، تو اس زمانے جی میں فلائٹ اور ٹرین، ایروپلین، اور جو آسان سواری جی آج کل گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں 100 کلومیٹر، اور ہاں جی پلین میں 1000 کلومیٹر، تو ایسا ہاں تو ہاں سہولت اس زمانے میں تھی نہیں۔ نہیں تھی۔ ہاں، تو چند ہزار صحابہ تھے، تمام صحابہ اکرام تدفین میں شرکت کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چند صحابہ حجرہ میں داخل ہوتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے اور جی زیارت کرتے تھے۔ یہ حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے وقت کی کیفیت تھی، سمجھے؟ جی تو جی اور اگر 1000 بھی نہ ہو، 100 بھی نہ ہو،
फिर नबी नबी होते हैं, उनका मर्तबा जनाजे से तय नहीं होता, मैयत की तदफीन से तय नहीं होता, लेकिन मुत्तकी परहेजगार मोमिन के जनाजे की बड़ी जमात की भी अहमियत होती है। हाँ, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया मेरा जनाजा तय करेगा हक पर कौन है, कि उस जमाने में बातिल फिरके वाले इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, कोड़े मारे थे, जुल्म ढाए थे। तो उन जालिमों को जवाब दिया कि मेरे जनाजा तय करेगा कौन हक पर है। तो हजरत का जब जनाजा निकले 25 लाख जनाजे में शिरकत किए थे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि के जनाजे में। और उस जनाजे को देखकर इराक में बगदाद शरीफ में उस जनाजे को देखकर 25,000 ईसाई कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। तो मर्द मोमिन का नबी की उम्मत के जनाजे की जो बड़ी जमात है उसकी अहमियत है, उसकी जनाजे देखकर मर्तबा उनका समझ में आता है। समझ में आया? जी जी। अब अख्तर रजा खान अजहरी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आपने तो ये कहा मामूली पठान मौलवी, तो पठान होने से आपको क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, आलिम दीन है और क्या है। तो आलिम दीन का मामूली आलिम, जब इस जमाने में मिस्र में जामियातुल अजहर में नंबर 1 आलिम का उनको सनद मिला, तो इस जमाने के कोई मामूली आलिम नहीं थे, वो आला हजरत के वारिस थे। एक वली के घराने में पैदा होने वाले 7 पुश्तों तक उस वली के फैज मिलता है। हाँ जी, 7 पुश्तों तक, क्योंकि सूरह कहफ में जो सूरह कहफ का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया है, उस वाकया में एक दीवार टूट के गिर रही थी। उस दीवार को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मोजेजा से दीवार सीधा किया। क्यों सीधा किया? उस दीवार के नीचे खजाना था। उस खजाने को बचाने के लिए, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, बाप इंतकाल हो चुका था, और बाप इंतकाल हो चुका था, उस बच्चों को ताकि बड़े जवान होने के बाद उनको वो खजाना मिल जाए, क्योंकि खजाना जहाँ दफन थे उस दफन के बारे में उनके घर में रिकॉर्ड था, किताब थी, लेटर था, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि दफन जो खजाना है फलाना जगह दफन है। तो बच्चे बड़े होंगे, समझदार होंगे, उसके बाद वो खजाना उनको मिल जाएगा। इस वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दीवार को सीधा किया। तो तफसीर में बताया गया, कुरान की आयत की तफसीर है, वकाना अबूहुमा सालिहा, यह आयत की तफसीर में बताया गया कि वो बाप अल्लाह के वली थे, इसलिए वली की औलाद को उनकी खिदमत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने काम लिया और वो खजाने की हिफाजत किया। तो वली की औलाद होना भी खुश नसीबी की बात है, कोई बदनसीबी की बात नहीं है। वली तो वली, एक मोमिन की औलाद भी मोमिन बाप होना और मोमिन बाप का मोमिन बेटा होना बड़ी खुश नसीबी की बात है। तो आला हजरत के औलाद और आला हजरत की औलाद में से पूरी दुनिया में जय्यद आलिम होने की वजह से उनकी अहमियत, सारी दुनिया ने उनको अहमियत दी और उनकी इज्जत एहतराम किया। उनके ज़िंदगी में भी हर जलसे में लाखों की भीड़ होती थी, सिर्फ उनके चेहरा देखने की लोगों को आस थी। यहाँ तक कि हमने सुना लाखों मुसलमान हुए गरीब नवाज के चेहरा देखकर, वो तो 700-800 साल पहले हुआ था, माशाअल्लाह, गरीब नवाज के चेहरा देखकर लाखों मुसलमान हुए। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के चेहरा देखकर भी बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने, और खुद कर्नाटक के बेलगाम शहर में भी एक गैर मुस्लिम थे जो हुजूर ताजुश शरिया के चेहरा देखकर मुसलमान हुए। तो इतने बड़े आलिम को आप एक मामूली पठान मौलवी क्यों कह रहे हैं? वजह क्या है? भाई वो तो आलिम दीन है ना, आलिम दीन बोले तो वो एक इस जमाने के आलिम दीन है। हाँ, तो पठान मौलवी आपने कहा, एक मामूली पठान मौलवी, तो ये किस वजह से आपने कहा? उस वजह से कहा कि भाई आलिम के जनाजे में लोग आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, और नबी के जनाजे में लोग छोड़कर चले गए। छोड़ के चले गए? किसने बोला? मैंने आपको शुरू में बताया, आपकी गलत फहमी है। जनाजा किसी ने छोड़ के चले नहीं गए, जो जनाजा दफन करने की जिम्मेदारी घर वालों की थी,
नबी के घराना हजरत अली घराने हैं। और जी जो सहाबी की जो जिम्मेदारी थी, हर सहाबी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया। तो सहाबी की कमी ढूंढने का मतलब है आपके अंदर कोई ना कोई गुमराही है, जिस वजह से आप सहाबा में कमी ढूंढ रहे हैं कि सहाबा छोड़कर चले गए। जितने सहाबा थे जो आ सकते थे वो जनाजा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफीन के लिए, तजहीज व तकफीन के लिए वो जरूर सहाबा तशरीफ लाए। सहाबा को हमसे हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत थी। किसी सहाबी के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। हर सहाबी ईमान के पहाड़ है, ईमान के पहाड़ है। उनके ईमान कोई नाप नहीं सकता, इतने ईमान वाले थे। तो उनके अंदर आप कमी क्यों ढूंढ रहे थे? वो छोड़कर चले गए। और दूसरी बात, हमारे इतने बड़े आलिम दीन जो बहुत सारे नबी की शान में नात शरीफ लिखे, जो पढ़कर वज्द में आ जाते हैं लोगों की ईमान की हरारत और ईमान के अंदर जोश पैदा हो जाता है। ऐसे किताबें लिखे और ऐसे नात शरीफ लिखे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि। और हुजूर की ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि की करामत ये है कि हुजूर के आंख की बीनाई बहुत कम हो चुकी थी। फिर उसके उन्होंने एक नात पढ़ के हुजूर के शान में इस्तिगासा किया, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद दुहा कर दे। ये जो नात शरीफ हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा और इसको गुनगुनाते रहे, तो थोड़े दिन के अंदर उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। अब बताइए, ज़ईफ होने की वजह से आंखों में कमजोरी आने के बाद जब सरकार के शान में इस्तिगासा किया, हमारे आका ने फरियाद सुने और आंखों में रोशनी बीनाई वापस आई। और भी बहुत सारी करामतें देखकर लोग ईमान में दाखिल हुए, कितने बदअकीदा तौबा किए। एक मैं उनकी बात बता रहा हूँ, देवबंदी और अहले हदीस उनकी किताब में लिखे हुए हैं कि आला हजरत बहुत काले थे और आला हजरत की औलाद भी बहुत काले थे। ये आज भी उनकी औलाद काले हैं बोल के किताबों में झूठ लिखा है, देवबंदियों की किताब में। तो हमने लोगों को, देवबंदियों को कहा कि तुम्हारे मौलवी कैसे झूठ बोलते हैं, देखो तुम्हारी साफ झूठ साबित हो रहा है कि देवबंदी झूठे हैं। तो कुछ लोगों ने आला हजरत की औलाद को देखने के लिए आए। जो भी आला हजरत की औलाद को बरेली शरीफ में आकर हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखा, देवबंदियों को झूठा साबित किया और आला हजरत की औलाद का चेहरा देखकर, हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखकर देवबंदियत को छोड़ा, क्योंकि आला हजरत के कोई औलाद काले नहीं है। और हुजूर ताजुश शरिया जैसे गोरे और हुजूर ताजुश शरिया जैसे खूबसूरत नूरानी चेहरा वाला आज तक मैंने भी कहीं नहीं देखा। और ऐसे आलिम दीन को आप मामूली पठान मौलवी कह रहे हैं, वजह क्या है? किस वजह से आप नफरत करते हैं, बताइए। नफरत हम किसी से भी नहीं करते, हम तो सबसे प्यार करते हैं। क्यों कह रहे हैं कि पठान मौलवी के जनाजे में करोड़ों अरब? एक तो बात यह है, पूरी दुनिया में 2 अरब लोग हैं, पूरी दुनिया में मर्द औरत बच्चे और दुनिया के हर मुल्क मिला के 2 अरब। अरब किसे कहते मालूम? 100 करोड़ में 1 अरब होता है जी। हाँ, 100 करोड़ में 1 अरब होता है। और पूरी दुनिया में हर देश, अमेरिका से लेकर इंडिया तक पूरे देश मिला के होता है 2 अरब 200 करोड़ मुसलमान हुए। और हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में लाखों करोड़ों अरबों किसी ने भी नहीं कहा। हाँ, बहुत सारे जिनको तजुर्बा नहीं है, जिनको अंदाजा नहीं लगा सकते, वो तो कहते करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़। ऐसा नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है। तकरीबन 30-35 लाख मुसलमान शामिल हुए थे। पूरा बरेली के हर गली गली लोगों का हुजूम था। 30-35 लाख। ये जो ज्यादा तजुर्बाकार आदमी जो नाप सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, सही अंदाजा लगा सकते हैं, उनका कहना है 30-35 लाख मुसलमान शामिल हुए थे, समझे? और आपने ये कहा कि सहाबा छोड़ के चले गए थे। क्यों? किसने कहा आपको सहाबा छोड़कर चले गए थे? ऐसा सुना जाता है। किसने? कहाँ से सुने आपने? किसका बयान सुनते हो? ये कहा जाता है कि विशाल के वक्त कुछ सहाबा जो है सकीफा में चले गए थे। सकीफा में? तो सकीफा में जाना था तो सकीफा क्या है? खिलाफत हाउस। खिलाफत हाउस।
تو خلافت ہاؤس جانے والے غلط تھے آپ کے نظر میں؟ نہیں غلط نہیں تھے، مگر کیا ہے کہ جو اہم کام ہے وہ نمٹا کے جانا چاہیے تھا، یہ خیال ہے اہم کام ہمارا، کیا اور تھا؟ کچھ نبی کا جو مشن ہے، نبی جی کا جو مشن ہے اس مشن کو جی باقی رکھنا، اس مشن کو جی آگے بڑھانا، یہ ضروری کام ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہے۔ وہ نبی کا مشن کا ذمہ دار کون ہے؟ نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث کون ہے؟ ابھی ہم تو مولا علی کو مانتے ہیں۔ ارے بھائی، تو آپ سے ذمہ دار نبی کا مشن کیا ہے؟ دنیا میں کلمہ پھیلانا، ایمان پھیلانا، مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرنا، انصاف قائم کرنا، قرآن کی حکومت قائم کرنا، اس کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ سب ذمہ دار ہے، امتی تو پورا ہر ذمہ داری ہے نا۔ امتی ذمہ دار ہے کہ نبی جی کی حکومت کو برقرار رکھنا، جی نبی کا جو مشن ہے قرآن کی حکومت کو جی دنیا میں قائم رکھنا، اس کے لیے جی صحابہ اکرام ہر صحابی ذمہ دار تھے۔ یہ ذمہ داری کس جی کی تھی؟ ہر صحابی کی تھی۔ جی تو ہر صحابی مل کر اکٹھا میٹنگ بٹھائے اور میٹنگ میں طے جی ہوا کہ آپ مسلمانوں کے سرپرست کون ہیں؟ تو سارے جی صحابہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے ہوا۔ تو یہ تو کوئی غلط جی بات نہیں تھی۔ تمام صحابہ جو نبی سے تربیت حاصل کی، نبی سے جی تربیت یافتہ صحابہ اکرام نے طے کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہیں، وہ طے ہوا۔ ایک ذمہ داری یہ ہوئی۔ دوسری ذمہ داری جی دوسری ذمہ داری، کسی کے وفات جی ہو، چاہے نبی ہو، ولی ہو، امت ہو، عالم ہو یا کوئی ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، جی ذمہ داری، کوئی مر جائے، وفات ہو جائے، ہاں تو ہاں اس کو دفن کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خاص طور پہ گھر والوں کی۔ گھر والوں کی۔ تو گھر والوں کی ذمہ داری، گھر والوں کی ذمہ داری گھر والوں نے نبھایا، اور صحابہ جی اکرام کی ذمہ داری صحابہ اکرام نے نبھایا۔ جب جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور جی حضرت ایک صحابی قبر کھودے، نام مجھے یاد جی نہیں آ رہا ہے، وہ صحابی جی حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو کھودے۔ تو جی جن کی جو ذمہ داری تھی حضرت علی نے ان کو ذمہ داری دی، یہ جی ذمہ داری حضرت علی نے ہی دی، اور حضرت علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں جو تجہیز و تکفین کی ذمہ داری صحابہ اکرام نے نبھایا۔ اور ادھر جب جی طے ہوا کہ مسلمان بغیر سرپرستی کے مسلمان ادھر ادھر بہک نہ جائے، مسلمان پھر ٹوٹ نہ جائے، بکھر نہ جائے، اس لیے متحد رکھنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت تھی۔ جی تو دونوں نے برابر سے دونوں ذمہ داری برابر نبھائے گئے۔ تو الزام جی لگانے والے کون ہیں؟ آپ الزام نے کس لگانے کی والے، بکواس سنے ہیں؟ کس کی بکواس آپ نے سنا ہے؟ نام بتائیے، جی کیونکہ ان آصف چوروں رضا کا علوی، نام بھی سامنے آنا چاہیے، جن چوروں نے آپ کو ایسا ہمارے بتایا۔ نے سنا آصف رضا علوی، آصف رضا علوی، وہ علوی شیعہ رافضی، ہاں جی جو کہتا ہے قرآن 40 پارے کے ہیں، ان لوگوں کی بکواس آپ نے سنا ہے؟ جی تو وہ خود چور ہے، وہ خود ایمان کے اچھا لٹیرے ہیں، جن کے نظر میں قرآن ابھی مکمل نہیں ہے، قرآن ادھورا جی ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے، تو وہ خود کافر ہیں۔ آصف رضا علوی کی بکواس سنو گے تو ایسا ہی بکواس کرو گے۔ جی تو آپ سنی جماعت سے ہو یا شیعہ ہو یا تبلیغی ہو؟ بتاؤ۔ سنی جماعت سے ہے، مگر میں نے سنا ہے ایک آدھ بار مطلب۔ تو آپ ایسی بکواس سننا نہیں چاہیے نا۔ اگر سنی جماعت سے ہو، کسی بد مذہب جی کی یا ہندو کی یا RSS والوں کی یا پھر یہودیوں کی، عیسائیوں کی بکواس آپ سنو گے، یا ناستک جی یا نان مسلم کی، ایکس مسلم کی بکواس آپ سنو گے، تو آپ کو سننے کو منع کیا گیا ہے نا۔ عوام کے لیے تو سخت حرام ہے، منع ہے، بالکل حرام ہے۔ غیر مسلم کی تو نہیں سنتے، مگر مسلمان سمجھ کے سنتے ہیں نا، بھائی تو قرآن حدیث مسلمان، سناتے شیعہ ہیں کو نا آپ اس کے لیے۔ مسلمان سمجھ رہے ہو، آپ سنی ہو، شیعہ کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہو، شیعہ کی نظر میں معاذ اللہ سارے صحابہ کافر ہیں، صرف 3 بچے تھے، 3 صحابی، مقداد جو قبر کھودنے والے، ابھی یاد آیا نام، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر جی مبارک کو کھودا ہے۔
जी हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जी ये तीन सहाबी उनके नज़र में मुसलमान है। तीन के अलावा उन किताब में लिखा हुआ है हक़्क़ुल यकीन में, शिया मजहब में, कि तीन के अलावा बाकी सारे सहाबा काफिर हो गए थे। तीन का नाम लिया है, ये अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु और मिक़दाद रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीन के अलावा बाकी सब काफिर हो गए थे। तो ये तीन में भी अली शामिल नहीं है, माज़अल्लाह। आप बताओ, खुद अली ही शामिल नहीं है तीन में। खुद इनकी किताब है मुल्ला बाकिर मजलिसी हक़्क़ुल यकीन में लिखा है कि तीन के अलावा बाकी सब मुर्तद हो गए थे। जो कबीला बनी सकीब में जो खिलाफत हाउस बताते हैं, वहाँ जो जो गए थे वो सब मुर्तद हो गए थे, तीन ही बचे थे मुसलमान। जब सारी उम्मत में तीन बचे थे, वो तीन में अली भी शामिल नहीं है, हसनैन करीमैन भी शामिल नहीं है, फातिमा ज़हरा भी शामिल नहीं है। ऐसा तो मुझे पता नहीं है। तो ये शियाओं की जो गंदगी है ना, इनके नजर में मुता करे तो अली के बराबर हो जाता है, हुसैन के बराबर हो जाता है। एक बार मुता करे तो हुसैन के बराबर उसका मर्तबा हो जाएगा। मुता का मतलब क्या है? पैसा देकर मुंह काला करने वाला। इतना नेक काम है, इतना नेक काम है शिया मसलक में। पैसा देकर कोई मुता करेगा, वो एक बार मुता करेगा तो हजरत हुसैन के बराबर उसका मर्तबा होगा, और दूसरी बार मुता करेगा हजरत हसन के बराबर मर्तबा हो जाएगा, तीसरी बार मुता करेगा हजरत अली के बराबर मर्तबा हो जाएगा, चौथी बार मुता करेगा माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर उसका मर्तबा होगा। आप बताओ, पांचवी बार करे तो वो खुदा के बराबर हो जाएगा ना। पांचवी बार क्यों नहीं बताया? ये किताब है इनका बुरहान मुता, किताब का नाम है, नाम भी याद रख लो। किताब डाउनलोड कर लो, यूट्यूब इसमें मिलेगा आपको, गूगल में सर्च करके किताब डाउनलोड करके देख लो, बुरहान मुता। सारे ये सब बेतुका दलील और ऐसी गंदगी उस किताब में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी औरत मुता कर सकती है, मुता करा सकती है। और दुनिया में जहां भी शिया की आबादी है, वहां जिस्म फरोशी का ये जो सेक्स वर्कर है, उनको लाइसेंस शिया मसलक के एतबार से उनको लाइसेंस दिया जाता है। शिया औरत ही जिस्म फरोशी अड्डा चलाती है। ईरान में इसलिए जिना आम है, जिस्म फरोशी ईरान में सबसे ज्यादा आम है। वहां जिना को जिना नहीं समझा जाता। जब जिना का नाम बदल के हलाल का डिग्री और उसके सवाब है। हम लोग जिंदगी भर सिजदे में रहे, सारी जिंदगी अगर कोई दूसरा दुनियावी काम ना करे, सिर्फ सिजदे में सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सारी जिंदगी पढ़े, तो हुसैन के बराबर हो सकते हो क्या? बोलो। हाँ, कोई बंदा सारी जिंदगी अगर सिजदे में रहे, 1000 साल उसकी जिंदगी हो, तब भी वह अली के बराबर हुसैन के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन शिया इतना गंदा मजहब है, इतना गलीज मजहब है, दुनिया के कोई मजहब इतना गलीज नहीं है जितना गलीज ये शिया मजहब है, कि इनके नजर में जिना करो, मुंह काला करो और इतना बड़ा मर्तबा हो जाता है। और ऐसे लोग जो सहाबा अपनी सारी जिंदगी जान माल नबी पर लुटाए हैं, नबी के लिए हर चीज कुर्बान किए हैं, हर तकलीफ बर्दाश्त किए हैं, सारी दुनिया सारे काफिरों से उन्होंने पंगा लिए, सारे कुफ्फार के दांत खट्टे किए, सारे कुफ्फार के सामने इस्लाम का शान बुलंद किया, इस्लाम का झंडा लहराया, आधी दुनिया फतह किया। ऐसे सहाबा इकराम आसमान के सितारों की तरह जिनका रुतबा है, ऐसे सहाबा इकराम पर ये शिया लोग रात दिन भोगते हैं। वो आसिफ रजा अलवी एक नंबर का शैतान खबीस, जो माज़अल्लाह कहता है नबी की एक ही बेटी। पूरी दुनिया शिया राफजियों को मैं चैलेंज करता हूँ, आसिफ रजा अलवी हो या तो तुम्हारा नकवी हो, शहनशाह नकवी हो, या तुम्हारा भारत का जो कल्ब जवाद है, कल्ब सादिक है, ये जितने कल्ब है कुत्ते हैं, इन तमाम जहन्नमी कुत्तों को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम कुरान से साबित करो कि नबी की एक बेटी, और मैं साबित करूंगा। मैं रजा का शेर, अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहमद रजा
रहमत उल्लाहि अलैहि का मानने वाला, हुजूर ताजुश शरिया का मैं गुलाम, मैं साबित करूंगा नबी की बेटियां 4 थी। कुरान से भी साबित करूंगा और तुम्हारी किताब से भी साबित करूंगा। शियाओं की उनका किताब है। कॉल कट गया, हाँ, उनका कॉल कट गया। भाग गया। नहीं नहीं, अब दिल लगाता हूँ, देखता हूँ क्या है। अच्छा, मैं बात सुनो जरा। जी ये इनकी किताब मनाकिब आले अबी तालिब, मनाकिब आले अबी तालिब किताब का नाम है। उसके अंदर लिखा है कि नबी की 4 बेटी हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से पैदा हुए। नबी की 4 बेटियां खुद इनकी किताब में इनके बड़े मुज्तहिद उलमा ने लिखा है। लेकिन ये मौलवी शिया हो या बदअकीदा जितने हैं ना, जितने फिरके हैं, हर फिरके ये बदलते रहते हैं। ये अपने मौलवियों से भी संतुष्ट नहीं है, इनको तसल्ली नहीं है, इसलिए हर दिन इनका तरीका बदलते रहता है। ये एक जगह पर कायम नहीं रहता है। मोमिन की शान है, मोमिन हक बोलता है और हक पर कायम रहता है, डट जाता है। अल्लाह कुरान में मोमिन की शान बयान किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो कहता है मेरा रब अल्लाह है और उस पर इस्तिकामत के साथ कायम रहता है, जो हक बोलकर कायम रहता है, वो होता है मोमिन। और जो घड़ी घड़ी बदलता है, हर दिन बदलता है, हर साल बदलता है, वो हक पे नहीं होता। हमारा इस्लाम 1400 साल से जो है उसी पर हम कायम है। लेकिन ये शिया हो, बाकी जितने भी बातिल फिरके हैं और शियाओं के जितने भी एजेंट हैं, ये मौलाई और ये मदारी और ये सकलैनी, ये तमाम खबीसों का एक मजहब नहीं है। ये हर दिन बदलते रहेगा, ये हक पर कायम नहीं हो सकते। अभी अजान का टाइम हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन खबीसों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन जालिमों को हिदायत अता फरमाए। आमीन।